Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing chapter 4th related to class 11th. The topic's name is Principle of Mathematical Induction, and we are discussing NCERT exercise 4.1. And first question we have done, it is second question. Prove the following by using the principle of mathematical induction for all n is element of n. So here, first of all, in solution we have to mention let Pn, it is the statement 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dash 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 plus n cube is equal to n into n plus 1 whole upon 2 whole square. This is our statement for n is equal to 1. P of 1 is such that 1 cube, and that is equal to 1 into 1 plus 1 upon 2 whole square. Let us see. This is our LHS part. So 1 cube is 1 only, and here it is 1 into 2 upon 2. 2 will be cancelled, whole square. So 1 is equal to 1 square, that is 1. So LHS is equal to RHS. Therefore, because LHS is equal to RHS, therefore P1 is true. Let for n is equal to k, Pk be true. Where k is any पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर k क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है. तो हमने यहां n इज इक्वल टू k के लिए अपन ने बोला कि पी के ट्रू है, ये हमने एज्यूम किया. इट इज एजम्पशन, वी कैन से एजम्पशन, दिस वी हैव एज्यूम्ड. ये हमने माना कि n इज इक्वल टू के लिए पी के जो है वो ट्रू है. तो पहले पी के हम लिख ले, पी ऑफ के. इन केस ऑफ पी ऑफ के व्हाट वी हैव टू राइट, इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू राइट के ओनली. हम सबसे पहले क्या करते हैं, P1 लेते हैं. P1 में LHS की फर्स्ट टर्म लेते हैं, वो 1 क्यूब थी, और RHS में n की जगह पर 1 रखते हैं, क्योंकि यहाँ n इज इक्वल टू 1 लिखा है. तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर. सो 1 इंटू 2 अपॉन 2 whole square. So this 2 will be cancelled. So 1 square is 1 only. So 1 is equal to 1. So LHS is equal to RHS. Therefore P1 is true. Now one assumption always we have to take in the full exercise. Let for n is equal to k, P of k is true. ये हमने माना जहाँ पर k क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है. तो Pk जब हम लिखते हैं तो क्या करना है हमको, इन प्लेस ऑफ n वी हैव टू राइट k एवरीवेयर. That is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus and so on plus k cube is equal to k into k plus 1 upon 2 and whole square. इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया. इट इज इक्वेशन 1. नाउ for n is equal to k plus 1, we have to prove Pk plus 1 is such that 1 cube plus 2 cube
plus 3q plus dash 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 and so on plus k cube. What we have done here, we have to go up to k plus 1 term, मतलब यहाँ तक तो हम जाते ही हैं इसमें, और इसके बाद एक टर्म आगे और जाते हैं. तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो k क्यूब के बाद अगली टर्म क्या होगी, k प्लस 1 का होल क्यूब. अगली टर्म जो होगी वो होगी k प्लस 1 का होल क्यूब, क्योंकि इसके बाद k प्लस 1 आएगा. यहाँ k तक आया है, अगर यहाँ k माइनस 1 होता तो k तक जाते, k है तो k प्लस 1 तक जाएंगे, अगर यहाँ k प्लस 1 होता तो k प्लस 2 तक जाते. तो यहाँ हमको अब RHS में क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस pk प्लस 1 इज इक्वल टू k plus 1 in place of n, what we have to write, k plus 1, and here it is k plus 1 plus 1. So k plus 1 plus 1 is k plus 2. So here it will be k plus 2, and in denominator 2 will be there and whole square will be there. This we have to prove. So for this we have to proceed with our LHS. So we will do it afterwards. Now see, we have to take LHS first of all. LHS is equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus and so on plus k cube plus k plus 1 whole cube. See, we have written LHS. We have to prove it by bringing this RHS after solving this part. So see here, this part up to k cube is given in LHS of equation 1. See, in LHS it is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus and so on plus k cube, which is equal to k into k plus 1 upon 2 whole square. So we have to write in place of this complete k into k plus 1 upon 2 whole square. So this will become k into k plus 1 upon 2 whole square plus, what is there, concentrate there, it is k plus 1 whole cube. So k plus 1 whole cube afterwards. This is the value which we have substituted from equation 1. ये जो है, ये वाला पार्ट इक्वेशन 1 का LHS है. तो इस LHS को हमने, इस LHS वाले पार्ट को हमने इसके इक्वल माना था, तो ये वाला पार्ट हम इसकी जगह पर, इसकी प्लेस पर हम इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, इस कंप्लीट सीरीज की, और फिर k प्लस 1 का होल क्यूब उसके साथ प्लस करके लिख देंगे. नाउ व्हाट इज कॉमन हियर, अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए k प्लस 1 का होल क्यूब है यहाँ, और यहाँ k प्लस 1 का होल स्क्वायर है. तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपन दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं. k प्लस 1 का होल स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, k स्क्वायर, k का स्क्वायर बचा, और इसके अपॉन में 4 है, प्लस यहाँ से k प्लस 1 का होल क्यूब था, तो यहाँ से k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं. सो द रिमेनिंग पार्ट इज k प्लस 1 ओनली. जो बचा हुआ पार्ट है वो k प्लस 1 है, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मीन्स डिनोमिनेटर इज 1. सो नाउ k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 we can write, and 4 will be the LCM. See, LCM of 4 and 1 is 4. तो 4 LCM लिया तो 4 के टेबल में 4 तो 1 टाइम में आता है, तो 1 इंटू k स्क्वायर इज k स्क्वायर, एंड इन टेबल ऑफ 1 4 विल बी 4 टाइम्स. सो 4 इंटू k प्लस 1 विल बी 4k प्लस 4. नाउ यू कैन सी इट इज k प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड देन वी मे राइट दिस स्क्वायर ऑफ k plus 2 into k into 2 plus 2 square. See what it is upon 4. See, a square plus 2ab plus b square. So a square plus 2ab plus b square is what? A square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square. So this is the applied formula here. So we may write it k plus 2 whole square. So now this will become, it is equal to k plus 1 whole square
into k plus 2 whole square, and in upon it is 4. So it will be equal to k plus 1 into k plus 2 upon 2 whole square. This is only the RHS. See, this is the RHS. So it is proved is equal to RHS. So what we have to conclude at last? At last we have to conclude, because pk plus 1 is also true, therefore Pn is true by the principle of mathematical induction. तो ये प्रूव हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि Pn इज ट्रू स्टेटमेंट. यू कैन सी स्टेटमेंट, ये जो है Pn जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. हमको क्या प्रूव करना होता है? मैं फिर से आपको रिकॉल करता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले n इजिकल टू 1 रखते हैं और n इजिकल टू 1 रख करके LHS को RHS के बराबर लाते हैं. जब LHS RHS के बराबर हो जाता है देन वी कैन राइट दैट P1 इज ट्रू. जब P1 ट्रू होता है तो फिर हम n इजिकल टू k रख करके इसको ट्रू मानते हैं. इसको हम एज्यूम करते हैं दैट इट इज ट्रू. इसको हम जब एज्यूम करते हैं तो एज्यूम करने के साथ ही इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और फिर इसके बाद में n इजिकल टू k प्लस 1 रख करके इसको इस पूरी सीरीज को एज इट इज़ लिखने के बाद में इस सीरीज के साथ में एक टर्म आगे तक जाते हैं. ये k था तो उसके बाद वाली टर्म तक जाते हैं, मीन्स k प्लस 1 होल क्यूब तक जाएंगे यहाँ पर. और फिर इस वाले पार्ट में n की जगह पर k प्लस 1 रख देते हैं जो हमको RHS में दिया होता है हमारे क्वेश्चन के अंदर. तो वहाँ ये k की जगह k प्लस 1 हो जाएगा और k प्लस 1 मीन्स k प्लस 2 हो जाएगा और इसके अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर. तो ये हमको प्रूव करना होता है कि pk प्लस 1 ट्रू है. जब pk प्लस 1 पूरा सॉल्व करने के बाद में फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करने के बाद में अगर ये LHS जो है इसके RHS के बराबर आ जाता है तब हम बोलते हैं कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन कंक्लूड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट P of n is the true statement. So this question number 2 is over now. Now see question 3. 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus n up to n. This we have to prove 2n upon n plus 1. इसको हमको क्या प्रूव करना है? 2n upon n plus 1 प्रूव करना है. So for this let P of n is such that 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus n is equal to 2n upon n plus 1. So this is the solution first part. Now we have to write let for n is equal to n is equal to 1, P1 is such that 1 because it is the first term, it is LHS is equal to that part now 2 into 1 upon 1 plus 1 that is equal to 2 upon 2, 2 under 2 upon 2. So this 2 is cancelled by this 2 is equal to 1. So because LHS is equal to RHS, therefore P1 is true. That I have told you
सबसे पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ n इज इक्वल टू 1 जब रखते हैं हम तो इसकी हमेशा फर्स्ट टर्म लिखते हैं केवल। तो ये हो गया LHS। फिर RHS देखिए, RHS में n की जगह पर हमको 1 रखना होता है, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। सो 2 इंटू 1 इज 2 एंड 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो ये इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू हो गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट P1 इज ट्रू। तो यहाँ पे हमको P1 ट्रू है ये पता चला। नाउ let us assume that for n is equal to k, pk be true, ये हम ट्रू मान लेते हैं, where k is any पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर k जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर का ही पार्ट होता है, हमको ये फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ n बोला है। सो पॉजिटिव इंटीजर इज ओनली द नेचुरल नंबर। सो बिकॉज इंटीजर इज व्हाट, इन डिनोमिनेटर 1 इज देयर इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सो now it will be p of k is such that 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 and so on plus up to k is equal to, in place of n what we have to write, k. So it will be 2k upon k plus 1. This is only our first equation. Now what will be our assumption? Now we have to prove that pk plus 1 is true. This we have to prove. Now we have to prove that p of k plus 1 is true. Means p of k plus 1, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा कि ये पूरी सीरीज तो एज इट इज लिख देते हैं और इसके बाद एक टर्म आगे तक जाते हैं। मतलब इसके बाद वाली टर्म में अपन क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 नीचे 1 के अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस प्लस के एंड देन प्लस के प्लस 1, क्योंकि n के बाद n प्लस 1 आएगा, तो यहाँ k लिया अपन ने तो k प्लस 1 आएगा k के बाद। तो ये हो जाएगा सच दैट 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k एंड देन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस k प्लस 1। यहाँ कहाँ तक जाते हैं हम, k प्लस 1 तक जाते हैं। और इज इक्वल टू में RHS में अब हम क्या प्रूव करेंगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि n की जगह पर अब हमको क्या लिखना होता है, 2 इंटू के प्लस 1। n की जगह पर हमको k प्लस 1 लिखना होता है और अपॉन में k प्लस 1 मीन्स k प्लस 2। n की जगह पर हमने k प्लस 1 रखा यहाँ, तो k प्लस 1 यहाँ लिखा प्लस 1 दैट इज k प्लस 2। ये हमको प्रूव करना है। तो अब हम LHS लेंगे, इसका LHS लिया मैंने। सो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस k एंड आफ्टरवर्ड्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस
3 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1। यहाँ k के बाद में k प्लस 1 तक जाना होता है हमको, k के बाद में k प्लस 1 तक जाना होता है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस पार्ट वी आर हैविंग, this part we are having in our equation 1, it is the LHS. See, so by equation 1 या from equation 1 what we can write, let it be written in a proper manner because it should be more proper. Plus 1 upon this last 1 plus 2 plus 3 plus dash 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 plus k plus 1. Now it will be more better. Now see what we have to do. Up to here we can put in place of this complete this value. यहाँ तक हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ तक की वैल्यू का सम जो होता है वो हमको इतना दिया हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, इक्वेशन 1 से हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2k अपॉन k प्लस 1। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट जो बड़ा ब्रैकेट बना है ये पूरी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है जो कि 2k अपॉन k प्लस 1 के बराबर है, जिसको कि हमने एज्यूम किया था। प्लस नाउ वी हैव टू राइट 1 अपॉन दिस कंप्लीट सीरीज, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k plus 1। Okay, now we have to proceed further. Now see, it is 2k upon k plus 1. Now let me tell you one important thing. The sum of n terms, sum of n natural number means 1 plus 2 plus 3 up to n. If it is so, then this will be equal to n into n plus 1 upon 2. It is the sum of n natural number. Okay. So now sum of n plus 1 natural number, sum of k plus 1 natural number means in place of n, if it is k, then it will be k into k plus 1 upon 2. Now if we are writing here k plus 1 up to k plus 1, therefore 1 plus 2 plus 3, अगर इसका सम हम लेते हैं k plus 1 टर्म्स तक का, तो वो सम जो होता है वो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, k plus 1 के साथ में यहाँ पर हमको k plus 2 लिखना पड़ेगा और इसके अपॉन में 2 होगा। क्यों, क्योंकि k टर्म्स का सम, ये फॉर्मूला है, k टर्म्स का सम कितना होता है, k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2। तो k प्लस 1 टर्म्स मतलब अप टू k प्लस 1 तक के नेचुरल नंबर का सम जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम वाले फॉर्मूले से, वो किसके बराबर होता है, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पर k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2। तो यहाँ हम ये लिखने जा रहे हैं 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2। ये हमने सम ऑफ k प्लस 1 नेचुरल नंबर लिखा। सम ऑफ k नेचुरल नंबर ये होता है, अगर k नेचुरल नंबर का सम, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो ये सम ऑफ k नेचुरल नंबर या सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो अब सम ऑफ n प्लस 1 नेचुरल नंबर, तो n की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, n प्लस 1। ये मान लीजिए मैंने n लिया, तो n के लिए तो ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 था n नेचुरल नंबर के लिए। अब अगर ये एक टर्म आगे तक जाता है तो उस केस में हमको n की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर k प्लस 1 और k, इसमें k प्लस 1 प्लस 1 मीन्स k प्लस 2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पर इसको क्या लिख रहे हैं, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के अपॉन में इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी।
अब ये आगे सॉल्व करेंगे तो देन दिस विल बिकम 2k. व्हाट वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रिंग दिस 2 फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर. इस 2 को अपन, चूंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे. तो 2k अपॉन k प्लस 1 एंड देन प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2. And afterwards what we can do, we can take common here somewhat. What is common here? 2 upon k plus 1 is taken common. See, 2 upon k plus 1, 2 upon k plus 1. So what is the remaining portion? It is k upon 1, nothing is there means 1, plus 1 upon k plus 2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, देखिए ये पूरा एज इट इज सॉल्व किया हमने. 2 अपॉन k प्लस 1 एंड हियर इट इज k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2. अगर यहाँ मैं k प्लस 2 एलसीएम लेता हूँ तो 1 के टेबल में k प्लस 2 टाइम्स में आएगा. तो k प्लस 2 का k में इंटू हुआ तो k इंटू k स्क्वायर और k इंटू 2k. तो k स्क्वायर प्लस 2k एंड प्लस 1 विल बी एज इट इज, क्योंकि k प्लस 2 से k प्लस 2 कैंसिल हो गया. तो इसको अगर हमने इससे डिवाइड किया तो 1 आया था. 1 इंटू 1 इज 1. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो गया 2 अपॉन k प्लस 1. यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? ये आपको पता है कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे देन दिस विल बिकम व्हाट? देन दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन k plus 1 and here it is k plus 1 whole square. k plus 1 whole square. a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square upon k plus 2, because a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square. Now this k plus 1 and this k plus 1 will be cancelled. So it will be 2 into k plus 1 upon k plus 2. तो आप याद कीजिए आपका RHS क्या था? आपका RHS था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, 2n अपॉन n प्लस 1 के फॉर्म में था वो. तो यहाँ n की जगह पर k प्लस 1 लाना था हमको, और यहाँ n की जगह k प्लस 1 रखा तो k प्लस 1 प्लस 1 मीन्स k प्लस 2. तो ये आपका RHS आ गया. आपकी जो k प्लस 1 वाली सीरीज थी उसका LHS और RHS देखिएगा आप, तो उसके RHS में हमको ये प्रूव करना था. तो इज इक्वल टू RHS बिकॉज P of k plus 1 is true, because it is equal to RHS now. LHS we have taken, Pk plus 1 is true. Therefore Pn is true by PMI, principle of mathematical induction. I am denoting it by short form, principle of mathematical induction. This complete is assigned as PMI, we can say, principle of mathematical induction. So by the principle of mathematical induction, Pn is true. Pn is true statement, we can write. True statement by PMI, principle of mathematical induction. So this question number 3 is now over. Thanks a lot for watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Like it, subscribe it and share it, and please do study.